In this video, we'll be learning about the renal portal system, okay? And we'll be learning about the details that I have left in the last video regarding the urinary bladder. And later we will be seeing the structure of nephron, okay? Let me start the video by sharing my screen such that you will get a glimpse of what we have learned in the last lecture, okay? So let me first of all show you the circulatory, that is the way the blood is transported to your kidneys, if you remember, okay? I told you that the renal artery, okay, renal artery branches as a segmental artery, goes as interlobar, arcuate and interlobular, which enters into the nephron. So you just remember that the aorta is branching as renal artery, and the renal artery is going to pass down its branches as afferent arteriole into your nephron, okay? So later, before I come into this, let me first introduce you with the structure of the nephron such that you will understand far better the renal portal system, okay? Let me first of all come to the structure of the nephron. So we already have seen in the last video that that we have a pair of kidney, okay, and each of the kidney is going to actually comprise of 1 million of these functional units which are actually responsible for the filtration of the blood and which are responsible for removal of these nitrogenous waste as urea and the mineral salts and the water and small and the moderate size proteins are being flushed as urine, okay? So remember that those functional units are being called as nephrons, and this nephron is going to have an double-walled cup-like structure. This is your double-walled cup-like structure, where you can see that this double-walled cup-like structure is going to have the outermost layer is being called as a parietal layer, and the innermost layer is being called as a visceral layer. If you remember, many a times I told you to remember that the linings of the organs are usually by parietal and visceral layers, okay? The shortcut to remember is PV Sindhu, where PV stands for PV is going to be parietal and visceral. So it's not VP, but it is going to be PV. So the outermost layer of the Bowman's capsule here is parietal layer, और जो अंदर का layer रहेगा वो होगा आपका visceral layer रहेगा. ओके आपका जो पेराइटल लेयर है वो लाइंड अप है आपके फ्लैट सेल्स के साथ, जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं. तो यहाँ पर स्क्वैमस सेल्स आप देख सकते हो आपके पेराइटल लेयर में. आपकी विसरल लेयर इज आल्सो अ एपिथेलियम, बट इट इज गोइंग टू एक्चुअली हैव अ मॉडिफाइड एपिथेलियम here. This is little bit modified when compared to that of this squamous epithelium, because here they have some special cells which are going to be called as पोडोसाइट्स. उसको भी हम लोग देखेंगे, ओके? पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्लीज आप याद रख लीजिएगा कि आपके नेफ्रॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, वो है आपका ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल. इसको डॉक्टर बाउमन्स ने डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उनके what you call is reference may we named it as a Bowman's capsule, which is double walled, okay? One is parietal and visceral. This is of squamous epithelium. This is of modified squamous epithelium having podocytes, okay? Then उसके बाद देखेंगे कि आपका रीनल आर्टरी जो है, जो सेगमेंटल, इंटरलोबार और आर्क्यूएट इंटरलोब्यूलर बनता है, वही एफेरेंट आर्टीरियोल ए के साथ स्टार्ट होता है. एफेरेंट आर्टीरियोल बन के ये यहाँ पर कैपिलरी टफ्ट बन रहा है. आर्टीरियोल आपका बन रहा है कैपिलरी टफ्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं. इसको ग्लोमेरुलस ये रहता है आपके बॉमन्स कैप्सूल के अंदर. ग्लोमेरुलस को और बॉमन्स कैप्सूल को दोनों को ही मिला के हम लोग बोलते हैं मैल्फीजियन कैप्सूल, नहीं तो उसको कॉर्पसल बोलते हैं, मैल्फीजियन कॉर्पसल बोलते हैं, नहीं तो इसको रीनल कॉर्पसल भी बोल सकते हैं. किसको? ग्लोमेरुलस को और बॉमन्स कैप्सूल दोनों को मिला के. तो ये याद रखिए कि आपका रीनल आर्टरी आर्टीरियोल बन रहा है, जिसका जो एंटर हो रहा है, जहां ब्लड को लेकर आ रहा है इसके अंदर, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं. और यही कैपिलरी बाहर से निकल रहा है, जैसे इफेरेंट आर्टीरियोल जो ई से स्टार्ट होता है, इफेरेंट आर्टीरियोल. तो ये है आपका एफेरेंट, ये बन गया ग्लोमेरुलस, ये बाहर निकल रहा है, जहां ब्लड आउटफ्लो होता है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल, ओके? सो ये रहा आपके ग्लोमेरुलस के बारे में.
आपकी बाउमन्स कैप्सूल जो है वहां से कंटिन्यूअस हो रहा है एक लंबा सा टिब्यूल स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है आप देखिए जरा सा बहुत सारा कॉइल्ड है, टर्न बहुत टर्न्स है इसके अंदर, कॉइल्स है इसके अंदर। सो हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वोल्यूटेड। इसका मतलब होता है बहुत सारा ट्विस्ट और बहुत सारा कॉइल्ड नेचर है इसके अंदर। जैसे ये वाला ट्यूब जो है आपका बाउमन्स कैप्सूल के बहुत नजदीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ओके, ये वाला कंटिन्यू हो जाता है आपके एक हेयर पिन लूप के स्ट्रक्चर के जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। ओके, इसको बोलते हैं हेनलीज लूप, नहीं तो लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। ये वाला आपके नीचे तरफ ब्लड फ्लो को लेकर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपके डिसेंडिंग, क्योंकि ये नीचे तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। और जो आगे तरफ ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये वाला आपका थिन रहता है और ये वाला आपका थिक रहता है, ये याद रखना है। ये थिन रहेगा आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और जैसे आपका लूप ऑफ हेनली असेंडिंग बन गया है वो आपका बन जाता है थिक बन जाता है। और यही असेंडिंग लूप फिर से आपका इट इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूड एज अ more coiled tube, and this more coiled tube again is being called as convoluted tube। लेकिन ये लास्ट वाला हिस्सा है नेफ्रॉन का, लास्ट हिस्सा है, फाइनल वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो पहला वाला है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ तक होता है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। लेकिन आप से देख सकते हो कि आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है it is coming and entering into a long tube which is being called as collecting duct। इस collecting duct के अंदर multiple नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं, यहाँ पर दूसरे नेफ्रॉन का, यहाँ पर दूसरे नेफ्रॉन का। ओके, टेक्निकली बात किया जाए तो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ तक ही एंड हो जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक ही होता है। ओके, और ये याद रखना है कि आपका जो इफरेंट, जो बाहर निकलने वाला ब्लड फ्लो को बाहर लाने वाला है, वो वाला इफरेंट आर्टेरियल जो है आपका, इट इज गेटिंग फाइनली ब्रांच्ड आउट ओवर योर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड लूप ऑफ हेनली हियर। आप देख सकते हो ये वाला पूरा ब्रांच आउट है आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और उनको हम लोग बोलते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, क्योंकि ये वाला जो है आपके टिब्यूल पोर्शंस के पास नेटवर्क के जैसा नेटवर्क ऐसा फॉर्म कर रहे हैं, सो इनको बोलते हैं हम लोग पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, नहीं तो इनको हम लोग बोल भी सकते हैं वैसा रेक्टा बोलते हैं, एक्चुअली वैसा रेक्टा। ओके, ये वैसा रेक्टा पूरा कंबाइन होके वो ओपन आउट हो जाता है आपका रीनल वेन में। ओके, तो ब्लड फ्लो हो रहा है आपके हार्ट से, जो ब्लड आ रहा है आयोटा से रीनल आर्टरी में जाके वो गया है ग्लोमेरुलस में, जहां पर आपका ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है, और आपके सेल्स को छोड़ते हुए, फॉर्म सेल्स को छोड़ते हुए, जो आपके प्लाज्मा के फ्लूइड वाटर है, मिनरल सॉल्ट्स है, प्रोटीन्स है, और वो भी प्रोटीन्स कितने, इट इज गोइंग टू बी 100 नैनोमीटर का साइज से कम वाले प्रोटीन्स यहाँ पर फिल्ट्रेट बन के बाहर निकल जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ओके, जैसे ये जाने लगते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपके ग्लोमेरुलस में भी आपका ब्लड सेल्स और आपका थोड़ा सा जो बचा है प्लाज्मा, वो ब्लड कॉम्पोजिशन पूरा यहाँ पर आपके पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में जो आ रहा है वो, और यहाँ का जो सॉल्ट्स है वहां पर आपके डिफ्यूजन प्रोसेस, सॉरी आपके ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर वो एक्सचेंज हो जाते हैं, पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके लूप ऑफ हेनली में। ओके, और जो जितना भी पानी बचाना है बॉडी में या मिनरल सॉल्ट्स चाहिए, वो वाले रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके वैसा रेक्टा के अंदर, और वो निकल जाते हैं आपके रीनल वेन में, और फिर से बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो कम से कम पानी को ही हमको एक्सक्रीट करना है, तो जितना एक्सेस वाटर यहाँ पर आ चुका है आपके टिब्यूल्स में, वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी टिब्यूलर पोर्शन में, वैसा रेक्टा में, और वो पहुंचाया जाता है आपके रीनल वेन के अंदर। आप सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए मैं, क्योंकि एक्चुअल अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस है जो है, रीएब्जॉर्प्शन जो है, हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख रहे हैं। सो यू रिमेंबर दैट we have a Bowman's capsule double wall couplet structure
capillary tuft called as glomerulus, and we are having a proximal convoluted tubule near to the Bowman's capsule, or Malpighian corpuscle, or renal corpuscle के पास. Or we have loop of Henle. One we have is descending loop of Henle, one we have is ascending loop of Henle, जो कंटिन्यू होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और फाइनली दे ओपन इनटू अ लॉन्ग कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस ओपन्स इनटू यूरेटर. सो जो आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है दैट गोज इनटू योर यूरेटर एंड देन डिस्चार्ज इनटू योर यूरिनरी ब्लैडर. ओके, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है. Now let me come to the urinary bladder and show you actually कि आपका ब्लैडर कैसा है, उसका मसल्स क्या है, वो डिस्टेंसिबल कैसे बन रहा है. बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको कि आपका जो साइज ऑफ यूटरस, सॉरी आपका साइज ऑफ जो ब्लैडर है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ हाउ मच इट इज बीन फिल्ड अप विद द यूरिन. ओके, उसके हिसाब से. तो जैसे आपके ब्लैडर में यूरिन बढ़ता रहेगा, आपका ब्लैडर का साइज भी बढ़ता रहेगा. दैट इज जस्ट बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल मसल विच इज कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल, जो इसको ये एक्सपैंडिंग नेचर जो है, आपके डिस्टेंसिबल प्रॉपर्टी जो है, वो आ रहा है आपके ब्लैडर को जस्ट बिकॉज ऑफ द डेट्रूसर मसल. और आपका जो इनर लाइनिंग एपिथेलियम है, ये वाला यहाँ का इनर लाइनिंग है ट्रांजिशनल एपिथेलियम के थ्रू हुआ है. ओके, आपको पता है कि आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है, जो जो स्ट्रक्चर्स आपके एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स में एक्चुअली हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखते हैं. तो यहाँ पर भी आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही प्रेजेंट है. और कमिंग ऑन टू द पार्ट्स ऑफ द ब्लैडर, द uppermost bulb-like structure is going to be the body, okay, and coming down to the narrower part, इसको हम लोग बोलते हैं neck of the urinary bladder. Okay, ये आपका बॉडी रहेगा और ये आपका नेक रहेगा. जैसे आप देख सकते हो कि आपका नेक जो है, इट इज कंटिन्यूअस एज अ केनॉल विच इज बीइंग कॉल्ड एज यूरेथ्रल केनॉल. ये यूरेथ्रा है आपका. ओके, ये जो फीमेल्स में शॉर्टर है और मेल्स में लंबा रहता है. एंड कमिंग ऑन टू प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पर ही आपके यूरेथ्रा के स्टार्ट में रहता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आपके यूरेथ्रा के पास वी आर हैविंग दो स्पिंक्टर्स रहते हैं, जो आपके यूरिन फ्लो को पास डाउन करना है कि नहीं करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आपके स्पिंक्टर्स के ऊपर है. तो जो आपके नेक के नीचे है वो वाला रहेगा यूरेथ्रल स्पिंक्टर, जिसको हम लोग इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर बोलते हैं. और जैसे आप नीचे आ जाते हो, यू कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड एज आपके यूरेथ्रल डायफ्राम बोलते हैं. और यहाँ पर जो देख रहे हो, ये है एक स्ट्राइएटेड मसल, और वो स्ट्राइएटेड मसल बन रहा है आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर बनता है. ओके, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, ये ऑरिफिस का मतलब ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द way your bladder is built up. It is lined by transitional epithelium. Let me show you the transitional epithelium, जो आपका डिस्टेंसिबल है, जो मैंने बताया है कि जैसे वो फिलअप हो जाता है तो वो डिस्टेंडेड, आप देख सकते हो कि आपके सेल्स फ्लैट डाउन हो जाते हैं. और जैसे आपके, लेट मी जूम दिस पिक्चर फॉर यू, you will get more good view on this. So ये जब आपका ब्लैडर फिल आउट हो जाता है तो आपके जो ट्रांजिशन एपिथेलियम के सेल्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, फुल साइज में आ जाते हैं, डिस्टेंडेड बोलते हैं हम उसको. और जैसे आपका ब्लैडर खाली हो जाता है, आपके सेल्स फिर से दे आर गोइंग टू गेट कोलैप्स्ड. सो ये जो कोलैप्स्ड और डिस्टेंडेड है वो वाला टिश्यू है आपका ट्रांजिशन एपिथेलियम, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर को लाइन अप करता है. ओके, लेट अस सी नाउ मिक्ट्यूरेशन, जहां पर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं, आपका ब्लैडर जो है कैसे वो वाला फिल आउट, और जब वो मिक्ट्यूरेट करते हैं और कम हम उसको खाली कर देते हैं तो कैसे वहां पर स्पिंक्टर्स क्लोज आउट हो जाते हैं. ओके, लेट अस सी दिस वन. सो यू कैन सी दैट this particular one, you can see that ये आपका जो है that is going to be your bladder that we can see, and this pink one is going to be the detrusor muscle. Okay, and this is going to be your what you call is आपका ये है आपका इंटरनल स्पिंक्टर,
और ये है आपका एक्सटर्नल स्पिंक्टर। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स दोनों ही कॉन्ट्रैक्टेड है, और आप देख सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ का यूरेथ्रल स्पेस जो है वो लॉकआउट हो चुका है, देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट हियर, जिसकी वजह से आप मिक्ट्यूरेट या यूरिनेट नहीं कर पाते हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आपका डेट्रोसिर मसल भी रिलैक्स्ड है, आपके स्पिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्टेड है, लेकिन जैसे आपका ब्लैडर फिल आउट हो जाता है, आपका डेट्रोसिर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसके वजह से आपके इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर दोनों ही रिलैक्स आउट हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका यूरेथ्रल स्पेस जो है वो खुल जाता है, एंड द यूरिन इज अलाउड टू पास फ्रॉम द ब्लैडर इनटू दिस पर्टिकुलर यूरेथ्रा। ओके, वहां से वो it is going to be sent out. So this is the way how you are going to micturate. आपके लिए जो शॉर्टकट है याद रखने के लिए ये है कि detrusor muscle is inversely proportional to internal sphincter and external sphincter. So sphincters are inversely proportional to detrusor. इसका मतलब ये होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे, और detrusor muscle रिलैक्स होता है तो आपके sphincters जो है they are going to get contracted. Okay, usually आपको जब मिक्ट्यूरेशन का मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मिक्ट्यूरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन प्रोसेस, अलोइंग योर यूरिन टू पास डाउन। ओके, सो आपके डेट्रोसिर मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों ही स्पिंक्टर्स आपके रिलैक्स करेंगे, तो यूरेथ्रा में आपका स्पेस क्रिएट होता है, जहां से आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट पास डाउन द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू the urethra. Okay, I hope you children have understood. So now I successfully have shown you the structure of the nephron. I have given you the clear cut picture about the bladder. Okay, now let me tell you what is portal system. ये बहुत जरूरी है, तो portal system क्या होता है ये समझना है आपको। अभी हम लोग जनरली जो देखते हैं, आपका आर्टरीज एंड होते हैं कैपिलरीज के जैसे, और आपके कैपिलरीज वेन्यूल्स बनते हैं और वेन्यूल्स वेन्स बनते हैं, है ना, इतना ही हम लोग देखते हैं। लेकिन एक पोर्टल सिस्टम वो होता है जहां पर दो कैपिलरी बेड्स आते हैं। देयर आर टू कैपिलरी बेड्स. If there are two capillary beds, we should call it as a portal system. Okay, if you see here, there is artery is ending as arterioles, and it is entering into a capillary bed. From capillary bed there is no vein, लेकिन क्या आया है, एक पोर्टल वेन आया, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेसल, और पोर्टल वेसल से फिर से एक नया कैपिलरी बेड आया है, और वहां से आया है एक वेन, यहाँ पर आया है वेन। ओके, सो देयर इज आर्टरी, देयर आर टू कैपिलरी टफ्स, दो कैपिलरी टफ्स के बीच में एक पोर्टल वेसल आएगा, और उसके बाद एक हिपैटिक, क्या बोलते हैं उसको, एक पोर्टल वेन आएगा, पोर्टल वेन। ओके, सो एट लास्ट वेन आएगा, ये आपका पोर्टल वेन रहेगा। आर्टरी, फर्स्ट कैपिलरी बेड, पोर्टल वेसल, सेकेंड कैपिलरी बेड, एंड देन वेन आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको पोर्टल सिस्टम। तो आपके जो रीनल किडनी में भी ब्लड सप्लाई है, आपका ब्लड सप्लाई भी किडनी का एक पोर्टल सिस्टम ही है। कैसा है वो वाला हम लोग देखेंगे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, जिस दिन मैंने आपको ये वाला ब्लड फ्लो बताया था, इफ यू कैन रिमेम्बर, आपके ये जो आर्टरीज है, ओके, सो दीज आर योर आर्टरीज, these are your arteries. आर्टरीज जाते जाते यहाँ पर एक पहली बार कैपिलरीज आए हैं, सो दैट इज फर्स्ट कैपिलरी टफ्ट। फिर उसके बाद फिर से आपको एक वेसल आया है, ओके, एक वेसल, उस वेसल का नाम है पोर्टल वेसल। पोर्टल वेसल की जैसा काम करने वाला कौन है, इफेरेंट आर्टीरियोल, और वहां से आया है सेकेंड कैपिलरी टफ्ट। ये सेकेंड कैपिलरी टफ्ट है आपका पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, वहां से स्टार्ट होता है फिर से आपका वेन्स। So ये है आपके रीनल पोर्टल सिस्टम। लेट मी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन और आपको दिखाऊंगी यही पोर्टल सिस्टम क्या है फिर से। ओके, तो ये है हमारा नेफ्रॉन, ये है आपका आर्टरी। आर्टरी आपका कैपिलरीज बना है जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला है, और वही ग्लोमेरुलस फिर से बाहर एक पोर्टल वेसल बन के बाहर निकला, और ये पोर्टल वेसल को हमने नाम रखा है इफेरेंट आर्टीरियोल। इफेरेंट आर्टीरियोल ये है आपका पोर्टल वेसल। ये पोर्टल वेसल डिवाइड हो चुका है कैसे, फिर से कैपिलरी बना है। तो कितने कैपिलरी बेड्स है, वन इज ग्लोमेरुलस,
सेकेंड इज पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज, ये ओपन हुए हैं कैसा, एक वेन बन के, कौन सा वेन है वो वाला, रेनल वेन. सो नाउ यू सी द पोर्टल सिस्टम, आर्टरी, कैपिलरी टाफ्ट, सेकेंड इज portal vessel, third is peritubular capillaries, and at last is coming to the renal vein. प्लीज आप वीडियो को प्लेबैक करिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए पोर्टल सिस्टम क्या होता है. पोर्टल सिस्टम वो होता है जहां पर 2 कैपिलरी बेड्स रहेंगे. I hope now you have understood this one. Okay, now let me come and show you the unique thing about your Bowman's capsule and glomerulus के बारे में एक बात करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट कमिंग वीडियो के लिए एक लिंक रहेगा. अगर आप देख सकते हो ये वाला चीज, ओके, Bowman's capsule और glomerulus को अगर आप देख रहे हो तो ये वाला, ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम वाला पेराइटल लेयर है आपका, और ये आपका इनर साइड रहेगा आपका विसरल लेयर. लेकिन आप डिस्टिंक्टिवली एक विसरल लेयर नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी विसरल लेयर है वो बना है आपके पोडोसाइट्स के साथ. पोडोसाइट, ये सेल आप जो देख रहे हो वो है एक पोडोसाइट, जिसको एक्सटेंशंस है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है, जिनको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ पोडोसाइट्स बोलते हैं, नहीं तो उनको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल भी बोलते हैं, फुट को पेडिसिल भी बोलते हैं. वो जो विसरल लेयर का पोडोसाइट है वो आपके ग्लोमेरुलर का कैपिलरी तक वो अपना रीच कर रहा है. If this is glomerulus and if this is going to be podocyte is traveling over the glomerular capillaries. So आपकी ये जो visceral layer का podocyte है वो कहाँ पर है, आपके ग्लोमेरुलाई का कैपिलरीज के ऊपर है, और उनके पोडोसाइट्स के जो फुट है, ये लंबे लंबे फुट्स है, वो बना रहे हैं फिल्ट्रेशन के स्लिट्स. जैसे आप चाय को फिल्टर करने के लिए आपके फिल्टर्स जो रहते हैं उनमें जो होल्स है, वैसा आपके विसरल लेयर का पोडोसाइट्स का ही फुट प्रोसेसेस के बीच के ये स्पेसेस जो है वो बन रहे हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, और इस स्लिट्स के थ्रू ही आपका ब्लड प्लाज्मा का वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स यहाँ से फिल्टर आउट होके गिरने वाले हैं आपके यूरिनरी स्पेस. यूरिनरी स्पेस का मतलब है कि आपका ग्लोमेरुलस और आपके बाउमन्स कैप्सूल के बीच का ये जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी स्पेस बोलते हैं उसको. ओके, समझ में आया? तो आपके जो विसरल लेयर का पोडोसाइट्स है वो रीच करते हैं आपके ग्लोमेरुलाई के आर्टर कैपिलरीज के ऊपर तक. और एक दूसरा चीज देखिए, आपका ये जो कैपिलरी है, ये जो येलो कलर का दिख रहे हो आप पाइप जैसा, ये है आपका ग्लोमेरुलस का कैपिलरी. ये कैपिलरी में खुद से पहले से ही होल्स है यहाँ पर, और एक एक होल का विड्थ डायमीटर होता है 50 to 100 नैनोमीटर्स है, बहुत कम है. फिर भी यहाँ से आपका प्लाज्मा जो है फिल्टर आउट होके बाहर निकलता है. और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो वो है आपका कैपिलरीज का बेसमेंट मेम्ब्रेन. समझ में आ रहा है? सो ग्लोमेरुलस किससे बना है? कैपिलरी से बना है. कैपिलरी का अपना खुद का एक एंडोथेलियम रहेगा ना, वो एंडोथेलियम सेल्स जो है उनमें पहले से ही होल्स है, तो उन होल्स को हम लोग बोलते हैं फेनिस्ट्रेशन. फेनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स मींस आपका जो कैपिलरीज है उनका एंडोथेलियल सेल्स में पहले से ही फेनिस्ट्रेशंस है, और ये एंडोथेलियल सेल्स किसके ऊपर रेस्ट करते हैं? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. और बाहर कौन है यहाँ पर? बेसमेंट के बाहर की तरफ विसरल लेयर के पोडोसाइट्स उनके ऊपर उनके जो फुट प्रोसेसेस है या उनके पेडिसिल्स है उनको रैप कर रहे हैं. तो ये याद रखिए कि आपका जो फिल्टर है चाय को फिल्टर करने के लिए जो मेश रहता है, वैसा यहाँ पर आपका एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडो आपका कैपिलरीज और पोडोसाइट्स के ये जो पेडिसिल्स है, वो सब ये तीनों मिलके बनते हैं बैरियर्स फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. This is very important, children. I hope you have understood this one. This is a glomerular capillary which is having holes by itself because the endothelial cells of the glomerular capillaries are having fenestrations or holes. This is resting on the basement membrane, okay? And over the basement membrane, what we can see is the podocytes of the visceral layers ke
वेसल्स रन होते हैं जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं, जिसके थ्रू फिल्ट्रेट आपका ब्लड जो भाग रहा है एफरेंट आर्टीरियोल से, एफरेंट आर्टीरियोल बहुत वाइडर रहता है और इफरेंट जो बाहर निकलने वाला ब्लड का है वो नैरो डाउन हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। एंड कमिंग ऑन टू ये फिल्ट्रेशन स्लिट से ही आपका जो ब्लड आ रहा है, ब्लड प्लाज्मा जो है वो पानी, सॉल्ट्स और जो प्रोटीन्स कम है 100 नैनोमीटर से भी कम, वो वाले यहाँ पर फिल्ट्रेट बनके आपके यूरिनरी स्पेस में आके जाते हैं। वो वाले कहाँ पर? आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल्स को जरा प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट फोर्थ कमिंग वीडियोस में मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये वाला है आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल्स। आप देख सकते हो ये वाले एक्सटेंशंस जो है वो है माइक्रोविलाई। These cells are the cuboidal cells having the what? The microvilli, finger like folds. आपको पता है कि हम हमारे इंटेस्टाइन में भी विल्लाई है जो एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, जो फिल्ट्रेट आया है उसमें से ज्यादा वाटर सॉल्ट्स को उनको वो रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजेगा फिर से। तो इसके लिए यहाँ पर क्यूबॉइडल cells with the microvilli are present. So this podocyte structure and the fenestrations and filtration slits are important for you children. Okay, now let me come to a related topic. This is also important for your examination point of view. ये पता होना बहुत जरूरी है आपको कि nephrons जो है, there are two types of nephrons children. One is being called as cortical nephrons and the second category is called as juxtamedullary nephrons बोलते हैं। cortical nephrons वो है जिनका malphigian corpuscle या renal corpuscle. What is renal corpuscle? Bowman's capsule with glomerulus togetherly is called as a renal corpuscle. ये renal corpuscle जो है ज्यादा वो cortex में है, सिर्फ और सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा ऑफ लूप ऑफ हेनली हैज कम इनटू द मेडुल्ला एरिया। ये लाइट पिंक वाला पूरा कॉर्टेक्स और ये पूरा आपका मेडुल्ला है। अगर आपके 80% ऑफ मींस आपके मैल्फिजियन कार्पसल है, आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, आपका लूप ऑफ हेनली है, ये मैक्सिमम कॉर्टेक्स में ही रहेगा और कम से कम लूप ऑफ हेनली कम्स इनटू द medullary area, that is called as cortical nephrons. 85% हमारे किडनीज के nephrons जो है वो होते हैं cortical nephrons के। Then coming on to the juxtamedullary nephrons, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 15% ही रहते हैं juxtamedullary। juxta का मतलब होता है near, medullary का मतलब मेडुल्ला, इसका मतलब नियर मेडुल्ला जो है, नियर द मेडुल्ला, मेडुल्ला के नजदीक है कौन? आपका रीनल कार्पसल, आपके बाउमन्स कैप्सूल, आपका जो ग्लोमेरुलस है, दिस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम योर मेडुल्ला, इट इज वेरी नियर टू द मेडुल्ला and it is throwing all of its loop of Henle mostly into the medullary part only. आप कंपेयर करके देखिए, ये वाला कम से कम है लेकिन इसका तो लूप ऑफ हेनली बहुत ज्यादा ही मेडुल्ला के अंदर है। ये याद रखिए कि जितना लंबा आपका लूप ऑफ हेनली उतना ज्यादा ही आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बिकॉज ये ज्यादा सा ज्यादा आपका वाटर को रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो प्लीज रिमेंबर रखिए कि आपका लूप ऑफ हेनली जितना लंबा उतना कॉन्सेंट्रेटेड आपका यूरिन रहने वाला है। और ये मैंने पहले भी बोला था कि टेक्निकली आपका नेफ्रॉन जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास ही एंड अप हो जाता है और आपके ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग डक्ट्स है आपके, इसमें से अलग अलग के नेफ्रॉन्स के डीसीटीज ओपन आउट हो जाते हैं। डीसीटी का मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ओपन आउट हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो मुझे आपको कवर अप करना था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद और यूरिनरी ब्लैडर का मसल और एपिथेलियम के बारे में बात करने के बाद। जो बचा है अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपका किडनीज का रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन एक बताना था बच्चे, बिकॉज
आपको पता होना चाहिए कि पेरिटोनियम क्या है और रेट्रोपेरिटोनियम इसको क्यों बोलते हैं। आपको सिर्फ मगअप करके नहीं लिखना है एग्जाम में, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो पेरिटोनियम का मतलब होता है कि आपके एब्डोमिनल कैविटी में, there is a thin lining. Can you see this lining? So this thin lining which is being present is being called as a peritoneal lining बोलते हैं इसको, पेरिटोनियम बोलते हैं। ओके, एंड ये जो कैविटी है उसको बोलेंगे पेरिटोनियल कैविटी, विच इज विद इन द लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियम। अगर आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन इस कैविटी में नहीं आता या बाहर की तरफ आता है, सो वी शुड कॉल इट एज रेट्रोपेरिटोनियल। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो, आउटसाइड पेरिटोनियल कैविटी। So since your pair of kidneys, this and this is your pair of kidneys. So since your pair of kidneys are behind or outside the peritoneum lining, we should call it as retroperitoneal. I hope I made it clear for you children that what is retroperitoneum. कोई भी ऑर्गन आपका पेरिटोनियम के बाहर की तरफ रहेगा या बिहाइंड रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल कवरिंग बोलते हैं। ओके, सो आज हमने क्या देखा, इस रेट्रोपेरिटोनियम का क्या होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, जहां पर 2 कैपिलरी बेड्स है आपके लिए। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन दैट आपके ऑलरेडी ग्लोमेरुलाई का जो कैपिलरीज है उसका एंडोथेलियल सेल्स का स्पेशलाइजेशन ये है कि उनमें ऑलरेडी पोर्स है, सेल के अंदर पोर्स है, और हर एक पोर का विड्थ होता है या डायमीटर होता है 50 to 100 नैनोमीटर्स। सो उनसे से कम वाले आपके प्लाज्मा से फ्लश आउट हो जाते हैं, फिल्ट्रेट बन के आपके यूरिनरी कैप्सूल के अंदर। ओके, ये याद रखना है। और बैरियर कौन बनता है आपके फिल्ट्रेशन के लिए? एंडोथेलियल सेल्स बनते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है, और आपका विसरल मेम्ब्रेन का पोडोसाइट्स का जो पेडिसल्स है आपके ग्लोमेरुलस के ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर आते हैं, वो भी बन रहे हैं आपके बैरियर्स। उसके अंदर से निकलता है आपका फिल्ट्रेट। ओके, सो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इन द different processes like ultrafiltration, and we will be watching the what we call is ultrafiltration के साथ साथ we will even see the reabsorption process कैसा होता है, और कैसे आपका पानी को बचाया जाता है, और कैसे आपके यूरिन को concentrated किया जाता है। Remember we have even seen the cortical as well as a juxtamedullary nephrons को भी हमने देखा है। Okay, so today what we have learned is important as a examination point of view, children. Okay, just go through it very well. You have to learn all these things, and I'm very thankful that you're giving your time to just go through these videos. I hope you will have a very good revision. So before examinations, once in a while, just go through the videos, because these are going to help you much in understanding the physiology. If you want to be a biological student, you need to understand the physiology well to understand the functionality. Okay, thank you very much, and thank you all.